जाता हूँ। हाँ तो तो जो लोग राजा साहब को नहीं जानते हैं, मैं उनको बता दूं कि ये जो 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 हमारी बुक जो है अपना हाथ जगन्नाथ, तो जब प्रिंटिंग की बात चल रही थी इसकी कि इसको पब्लिश कर जो है प्रिंट होना है, तो कि कैसे होगा, ये सब बिगिनिंग टाइम में था ये सब। तो उस वक्त जो है फंडिंग की बात चल रही थी, कौन करेगा फंडिंग, कैसे होगा ये। तो राजा साहब जो है वो उन्होंने जो है उन्होंने कहा कि सब कुछ मेरा है और मैं ही सब कुछ कराऊंगा। तो आज जो हम लोग जो अपना हाथ जगन्नाथ का जो वेल प्रिंटेड वाला जो देख रहे हैं, वो उसकी जो नींव रखने के पीछे जो जो है राजा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। वो टीसा के जो है काफी पुराने मेंबर भी हैं। और अभी जो है वो टेक हेड है वो, और एक कंपनी में CDIT करके। और टीसा की कोर टीम के एडवाइजर भी हैंगे। मैं उनका नाम एक्चुअली मैं बहुत बार सुन रहा था, जब भी कभी बात चल रही थी अपना हाथ जगन्नाथ की, तो राजा साहब का जो है हमेशा ही नाम आता था। पर मैं उनसे मिला, मैं आपसे एक्चुअली में उसमें जयपुर NC में। और और मुझे फिर उसका हरीश सर जो है वो उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। मैं उनका भी वेलकम करता हूँ। तो उन्होंने टीसा की बहुत जो स्टार्टिंग की जो जर्नी है वहां से लेकर के अब तक जो है कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा। राजा साहब जो है उन्होंने कितना जो किया वो, तो वो भी उन्होंने बताया। तो मैं दिल से अपनी तरफ से और जो बाकी जो नए लोग हैं उनकी तरफ से भी मैं राजा साहब का बहुत 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 धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ, जो नए लोग हैं उस हमारे लोग, तो आप उनके लिए अपना एक एक इंट्रोडक्शन दे, दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी राजा साहब प्लीज। थैंक यू राहुल। जितना बोलना था उससे काफी ज्यादा बोल दिया आपने। इंग्लिश में बात कर सकता हूँ मैं? हाँ हम ऑफ कोर्स सर, स्टैमर जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है। मैं ही आपसे हिंदी में बात करूंगा और आप पर कोई पाबंदी नहीं होगी सर, प्लीज। हाँ, मैं एकदम समझता हूँ, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। शायद बोलना उतना ज्यादा आदत नहीं है आजकल। तो गुड। सो या दिस राजा, आई थिंक I gained a lot from TISA then, whatever little I gave to TISA, right? I think I joined TISA in 2008 or 9. I came to Dehradun and was very impressed with the selfless work of Dr. Sachin, and JP was there at that time. And since then, I was more engaged in the first 4 or 5 years with the SHG and all of that stuff. Since then, I have been I make occasional trips, always available for anyone if they want to discuss or reach me. But I guess I'm at times busy on other activities. So my background, I did my engineering in '94 in computer science, NIT Warangal. Then did my MBA in IIM Calcutta. I was a person who stutters, and I had my share of suffering, especially at my MBA, IIM Calcutta. So, and later on in my jobs too. So, and been mostly on the software side. Uh, was a co-founder of one analytics product from 2017 to 22. I'm still a co-founder, but not actively involved. And right now, so otherwise with Cognizant, uh, that's one company probably many know. Otherwise, I was heading one more company in Hyderabad, India Center, but a smaller company, about 300 people in India, MNC. And right now I'm with
International Information Institute of Technology, International Information Institute of Technology, Triple IT Hyderabad. Uh, so I head the Center for Digital Technologies in Healthcare. So Triple IT जो है, this is a research center. Sorry, there is a lot of research going on. It's one of the premier institutes in technology, in IT, computer science. But I come from corporate. I'm not a professor there. I am heading a center which is focused on producing solutions for deployment in the healthcare space. So this, I've retired, quasi-retired. I choose to move out of corporate life last year. I kind of quit and then I was figuring out. So that's when this came up. So right now I take up one another philanthropic activity where we fund some not-for-profits. This is not philanthropic, but it has some similarity. Triple IT is a not-for-profit company, not-for-profit institute. So I enjoy trying to do something different than what I was doing with corporate. So that is what I'm here. I have suffered as an interviewer, conducted many interviews. So I know little bit. So eager. अगर हिंदी में अगर if there is a huge preference for Hindi, I can try. Not an issue. उतना अच्छा बोल नहीं पाऊंगा, but अगर वैसा preference है तो बोल दीजिए. नहीं, एक्चुअली में कोई जो है, हम लोग काफी इंटेलिजेंट स्टैमर हैं। आप हमें कम कम में मत आकिएगा प्लीज। तो आप इंग्लिश में ही बात कीजिएगा, पर हम आपका टेस्ट जो है बीच बीच में हिंदी में लेते रहेंगे सर आपका। Yeah, मैं मेरा चैट में भी ना मेरा दोस्तों के साथ वो ज्यादा वो चैट हिंदी में चलता है, लेकिन जब बोलने की बात होती है ना वो इंग्लिश में आदत हो जाती है। वैसा। हाँ, इंग्लिश चलेगा। इंग्लिश यस सर, एज फार एज आई कैन आई विल डू दैट। अच्छा सर, सर तो पहला ही जो क्वेश्चन है सर, वो मैं ये कर रहा हूँ। एक सर, एक जो है, एक वो बहुत बड़े शायर हैं, साहिर साहब। तो उन्होंने एक लिखा था, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तुम होती तो ऐसा होता। आई थिंक आपने सुना होगा शायद। यह हाँ, बहुत यस सर, बहुत अच्छा लगता है वो। यस सर। यह तो एक वो गाना जो था, वो उन्होंने लिखा था, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुम होती तो ऐसा होता। तो सर, जो जब जो लोग स्टैमर है या नॉन स्टैमर है, तो उनके साथ भी ये होता है कि जब वो इंटरव्यू देने पहुंचते हैं, जब इंटरव्यू के बाद जो है, फिर उनको ये होता है कि काश यार हम ये बोल देते। वो जब उन्होंने पूछा था तो हम ये बोल देते। तो सर, वो जो उसकी जो है कैसे, मतलब जो है वो ऐसा, मतलब जो ये जो मेन जो सेशन सर रहेगा, वो इसके आसपास ये कि वो जो गिल्ट जो है, वो उसके बाद वाला कि यार यार मैं ये बोल देता, यार मैं ऐसा कर देता। तो वो जो है सर, वो कैसे करे सर, उसके ऊपर कुछ कमेंट कीजिए। और यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, सो देयर इज नो बाउंड्रीज, प्लीज सर। हाँ, कंटिन्यू। तो ये हर किसी के साथ होता है, सिर्फ हकलाने वालों के साथ नहीं, हर किसी के साथ होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि अरे यार मैं वैसा बोल देता तो अच्छा होता। और ये थोड़ा पर्सनालिटी के ऊपर भी डिपेंड होता है। कोई कोई बोलता है जैसा भी इंटरव्यू हो वो समझता है कि बहुत खूब हुआ है इंटरव्यू, और कोई कोई जितना अच्छा भी इंटरव्यू हो ना उसके बाद लगता है कि अरे यार ऐसा कर देता तो और अच्छा हो। तो थोड़ा ये पर्सनालिटी के ऊपर होता है, जिस तरह से आप व्यू रखते हो या नजर रखते हो उस तरह से होता है। बट काफी बार मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ ना, जब मुझे गलत आंसर मिलते हैं काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग इंटरव्यू में क्या करने की कोशिश करते हैं, एकदम करेक्ट आंसर का उसके बारे में हम लोग क्या बोलते हैं, वी डोंट एक्सपेक्ट राइट आंसर, वी एक्सपेक्ट क्वाइट ऑफन द अगर इनका क्या अप्रोच अच्छा है, ये शायद अच्छी तरह से ये जो बोल रहा है उसने किया है, वो सही में ये चीज किया है क्या, कैसा जान लूं मैं, अगर ये प्रॉब्लम होता तो वो कैसा उसको आंसर कर देता। सो ये सब के बारे में हम लोग जब सोचते हैं तो एकदम सही आंसर कोई भी नहीं होता।
पहला हम लोगों को ये जान लेना चाहिए कि देयर इज नो सिंगल एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर, राइट? It's the honesty in answer quite often that wins it. And sometimes when someone feels that I was not able to answer it correctly, quite often it is deservingly so, probably because quite often that happens when somebody doesn't know certain area, doesn't have experience in certain area, is not a master of it, and then he's trying to make up for that by trying to create an answer. वो ऐसा काफी बार होता है। ऐसा कम होता है जब आप एक सब्जेक्ट के बारे में अच्छे जानते हो, तो बिल्कुल रॉन्ग आंसर बहुत कम बार देते हो। थोड़ा बहुत जितना जैसा आप उसको एक्सप्लेन करना चाहते हो उतना अच्छी तरह से आप शायद ही एक्सप्लेन ना कर पाए, बट बिल्कुल रॉन्ग तो वो बहुत कम होता है। तो एक बार आपको इंट्रोस्पेक्ट कर लेना चाहिए कि ये जो आंसर आप देते हो वो रॉन्ग किस वजह से है। क्वाइट ऑफन मोर प्रैक्टिस एंड मोर ग्रिप ऑन द सब्जेक्ट इज व्हाट इट इंडिकेट्स। अगर आपको उस सब्जेक्ट के ऊपर काफी ग्रिप हो, सो ये इंटरव्यू के बाद ना सिर्फ ये मत सोचना कि अरे यार मतलब व्हाट कैन यू डू फॉर दैट, राइट? हम लोग क्या कर सकते हैं, वो तो कभी भी हो सकते हैं। इट्स अनलेस हम लोग ये लक जान लें या दूसरे के ये मन में जो क्वेश्चन वो पूछेगा वो जान ले, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम लोग एग्जैक्ट आंसर दे पाएंगे। हम लोग सिर्फ वो जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं उसके बारे में अगर पूरी तरह से अच्छा जान ले, तब हमारे चांसेस जो है उस क्वेश्चन के करीब आने का काफी हद तक बढ़ जाएंगे। हम लोग हॉनेस्टी की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। और आ, अगर किस चीज के बारे में हमको मालूम नहीं है, तो हॉनेस्ट मतलब ये है कि अगर आप अपने स्किल्स के ऊपर विश्वास रखते हो, तब आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि अगर वो आंसर नहीं आता हो तो बोलना कि सर मैंने ये किया, ये नहीं किया। अगर आप हॉनेस्टी को विश्वास नहीं रखते, आप उनको फूल करने का कोशिश कर रहे हो, तो आप अपने आप पर, स्पेशली वो स्टैमरर्स का ये है कि हम अपने ऊपर भी थोड़ा ज्यादा प्रेशर ले रहे हैं जितना नॉर्मली हम लोग प्रेशर में जाते हैं, और इसकी वजह से और प्रेशर में जाएंगे हम। सो शायद हम लोगों के लिए ना ऑनेस्टी इज प्रॉब्ली द बेटर पॉलिसी और द बेस्ट पॉलिसी। जितना हद तक हो जाए हम लोग हॉनेस्ट रहना अच्छा है, एंड उसी में हम लोग कोशिश करें। दैट्स प्रॉबली द strength that stammering can bestow upon us. वंडरफुल सर। तो, तो इसमें भी सर क्या ये आ गया कि जो इंटरव्यू से पहले अभी जब पावस आनंद सर जो थे उनसे बात चल रही थी कि इंटरव्यू के पहले ही ये बता देना कि हाँ भी मैं मुझे स्टैमरिंग है, तो ये ये अच्छी अप्रोच है। मैं एकदम से नहीं कह सकता। इट इज अ वेरी what do you call personal thing. Some people, now there are people who it is almost not possible to hide it. It is better to be open because anyway you can't hide it. You might as well say that upfront कि है मैं हकला था। अब ये प्रॉब्लम उन लोगों में आती है जो थोड़ा कोवर्ट होते हैं। वो उन लोगों को या तो नहीं लगता कि वो पूरा स्टैमरर है, या तो लगता है कि वो छुपा सकते हैं। या तो ऐसे भी लोग हैं जैसा मैं मान लूं, कभी कभी लगता है कि कभी कभी अरे यार फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? मैं अगर कभी स्टैमरिंग करूंगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं स्टैमरिंग करता भी हूँ या नहीं भी करता हूँ, कभी कभी अगर करूंगा फर्क नहीं पड़ेगा। सो उसको नीडलेस अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा, थोड़ा प्रेशर कम होगा मेरे ऊपर ये चीज बतलाने से कि मैं स्टैमरिंग करता हूं, तब आपको वो बतलाना चाहिए। थोड़ा रिस्क ये है कि हर किसी को ना महसूस हो, नॉट ऑल पीपल आर वेल एजुकेटेड पीपल, देर इज नो कनेक्शन, नो कोरिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस और एबिलिटी एंड स्टटरिंग। देयर इज एब्सोल्युटली नो कोरिलेशन, राइट? but agar kabhi kabhi, and the awareness is increasing significantly, but at times depending upon who you are talking to, they may not carry the same impression. So वो रिस्क लेना अच्छा है। हमको ये देखना है कि हमारे हाथ में क्या है। अगर वो चीज बताने से हम लोग इंटरव्यू में अच्छा रिस्पॉन्ड कर पाएंगे तो कहाँ से बता आ देना गया चाहिए। अभी? अरे मैं आप ये तो भाई एकदम से कुछ हल्ला हुआ शायद ये। बाप रे। Yeah. चलो एनी हाउ। अच्छा सर, तो हम लोग जो 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 है वो
क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं सर। तो पहले बैनी जी ने ही हैंड रेस किया था, तो फिर पहले उन्हीं का सवाल ले जी लेते हैं। जी जी, बैनी जी प्लीज। ये जी हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि सबको गुड इवनिंग। और सर, ये तो सर हम लोग का ये जो सर ये होता है शायद, मतलब जो हम लोग का जो इंटरव्यू सर होता है, तो सर हम लोग का जो जो ये आपका एंजाइटी को सर हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं। और सर हम लोग का सांस जो मतलब एक फूलने का भी एक प्रॉब्लम होता है सर। तो ताकि सर उसमें क्या होता है कि तो फिर हम लोग को मतलब सर आंसर तो मालूम होते हुए भी फिर हम लोग क्या होता है कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो फिर और सर इसीलिए सर हम लोग ये होता है कि बहुत बार इंटरव्यू में रिजेक्ट तो भी हो जाते हैं सर। तो थोड़ा सर हम लोग ये जो ये सर एंजाइटी को कैसे हम लोग हैंडल करें, तो थोड़ा सर उसके बारे में जानना चाहिए। तो थैंक यू। या ये जो इंटरव्यू में शायद हम हम लोगों को सबको मालूम है कि जब हमारे ऊपर प्रेशर होता है तो अब हमारा हकलाने का चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, स्पेशली शुरू शुरू में वो तो बढ़ जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ये इंटरव्यू स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी प्रेशर सिचुएशन हो, अगर प्रेजेंटेशन देना हो या कोई मीटिंग में कुछ करना हो या कुछ और इम्पोर्टेंट सिचुएशन हो लाइफ में जिसमें हमको वो ग्रुप में हैंडल करना हो, ग्रुप डिस्कशन हो, ये सब में ये चीज आता है। तो ये अवेयरनेस हमारे ऊपर, जब जैसा कि मैं क्या करता था इंटरव्यू के ऊपर, अगर दो चीजों की शक ये होता है, ये तो हमारे ऊपर पहले से प्रेशर होता है, वो कंटेंट, वो क्या पूछेगा, क्या करूंगा, क्या आंसर दूंगा, वो सबके लिए, वो सबके ऊपर वो थोड़ा बहुत वो प्रेशर होता है। दूसरा प्रेशर होता है हम लोग कैसे आंसर कर पाएंगे, राइट। वो जितना हम लोग टैकल कर पाए ना, सो मुझे ये लगता था कि अगर मैं थोड़ा जो ट्रेनिंग जो है, तो वो जो हाई प्रेशर सिचुएशन से पहले अगर मैं थोड़ा करूं, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं थोड़ा अच्छा सा हैंडल कर पाऊंगा। उस चीज से मुझे कॉन्फिडेंस मिल जाती थी। अगर जिस चीज से मुझे कॉन्फिडेंस मिलती थी तो वो मैं थोड़ा करना चाहिए। कोई भी सिचुएशन हो, अगर कुछ चीज करने से आपको लगता है कि अगर ये मैं प्रैक्टिस करके जाऊं, एसएचजी वाला मीटिंग में, एसएचजी में जो हम लोगों को सिखाया गया है, अगर वैसा मैं थोड़ा प्रैक्टिस करके जाऊं या ब्रीथिंग करके जाऊं या मेडिटेशन करके जाऊं, मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैंने अपनी ओर से कुछ किया, जितना हो सकता था उतना किया। उससे अगर आपको कॉन्फिडेंस मिला तो वो अच्छी बात है। जिस चीज से आपको कॉन्फिडेंस मिलती है वो चीज आपको करना चाहिए, या तो वो स्टैमरिंग के ऊपर हो या कुछ प्रिपरेशन के ऊपर हो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे मैंने जो करना था वो नहीं किया। आंसर बोलना हमारे हाथ में हमेशा नहीं होता, लेकिन प्रिपरेशन हमेशा हमारे हमारे ऊपर है। वो हमारा खेल है, हमारे हाथ में है वो। जितना ज्यादा प्रिपेयर करके जाएंगे आप, प्रिपरेशन माने ये नहीं कि अगर पूरा, अगर हमको वो टॉपिक ही नहीं है तो उसका ऊपर प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जितना ऊपर, अगर हम रिज्यूमे दे रहे हैं, हम लोगों को एक बार ठीक से समझ लेना चाहिए कि रिज्यूमे में क्या क्या लिखा है हमने, क्योंकि उनका आंसर, उनका क्वेश्चन जो है उसी के ऊपर होता है। और हम लोगों को ये भी जान लेना चाहिए कि वो उनका जॉब डिस्क्रिप्शन जो देते हैं उसमें क्या लिखा है, वो हमको पक्की तरह से मालूम होना चाहिए। और उनको, और हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि वो कंपनी जो है वो कंपनी क्या करती है। ये सब के बारे में अगर आप जानेंगे ना, वो प्रिपरेशन हो जाएगा। तो हमको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक तो हमको आंसर आएगा, दूसरा हमको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हमने जितना हो सकता था हमने किया। वो कॉन्फिडेंस की वजह से हम लोग थोड़ा बहुत अच्छा बोल पाएंगे। और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि थोड़ा टाइम ना, हमको पहला 5 मिनट में थोड़ा, पहला 5 मिनट या जो भी है थोड़ा मुश्किल सा लगती है, और लेकिन जैसे जैसा टाइम बीतता जाएगा थोड़ा सिचुएशन इंप्रूव होता रहेगा। वो हमको थोड़ा ध्यान में रख के बोलना पड़ेगा, अपने आप को बोलना पड़ेगा। और हो सके अगर आपको लगता है कि मेरे ऊपर प्रेशर कम होगा, तो आपको
बेटर पॉलिसी, अगर आपका स्टैमरिंग ओवर्ट हो, उतना प्रेशर लग रहा है आपको, तो बेटर पॉलिसी मेरे ओर से ये होगा कि सर मैं थोड़ा हकलाता हूँ, थोड़ा प्रेशर सिचुएशन में ज्यादा हकलाता हूँ, थोड़ा मुझे टाइम प्रेशर में आप मत लगाइए, थोड़ा आराम से मुझे थोड़ा आराम से आंसर देने का अवसर दीजिए बोल के आप बोलना अच्छी तरह। अगर मुझसे कोई ऐसा चीज बोलेगा ना, तो मैं उनको उतना टाइम जरूर दूंगा, क्योंकि इतना टैलेंट की कमी है आजकल। अच्छा टैलेंट को कोई खोना नहीं चाहता, अगर ऐसा टैलेंट है तो हम उन लोगों को अवसर देना चाहते हैं। तो ज्यादा तक लोग इंटरव्यू जो करेंगे वैसा ही होगा उनका पर्सपेक्टिव भी, वो अनुमान लगा के उनको वो देना पड़ेगा। अच्छा सर, जैसे आप जितना एक्सपीरियंस आपका है अभी तक का, और मैं चाहूंगा कि जो है हम लोग जो आने वाले जो और लोग जो भी टीसा और जो और जगह से कनेक्ट होंगे, वो वो भी आप आपसे जो 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 है, सिर्फ सिर्फ हम आईटी का सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं मान सकते सर आपको। क्योंकि मुझे लगता है कि क्योंकि अगर आपको शायद याद हो या ना हो, मैंने आपसे जयपुर में जो जो है उसके एक ही बार बात की ये थी। उस वक्त आप जो है, अब मैं आपकी जिस जो आपका जो वॉइस का जो बेस जो हैगा, मैं सुन करके मैंने कहा लग नहीं रहा कि स्टैमरिंग करते होंगे ये। तो सर वो जो वो है सर, तो एनी हाउ मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछूंगा। सबसे पहले हम लोग जो है आरोग्य जी से भी पूछ लेते हैं उनका क्या क्वेश्चन। तो हम लोग जो है एक चीज करें कि कोशिश करें कि क्वेश्चन जो है शॉर्ट में ही रखें, क्योंकि सभी लोग हैं, उनको भी चांस मिलना चाहिए। हमारी जो है स्टैमरिंग खास है, तो हमें ज्यादा टाइम चाहिए, सामने वाले की कम है, उसको कम टाइम चाहिए। तो ये चीज ना करके जो है टाइम की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जी प्लीज, आरोग्य जी प्लीज। ओके, थैंक यू सर। हम लोग बार बार इंटरव्यू की बातें करते हैं, पर सर आप जब इंटरव्यू में सिलेक्ट सिलेक्ट हो हो जाते हैं, जैसे कि सर मैं अ, अगर मैं डेली ऑफिस जाता हूँ, तो द फर्स्ट प्राइमरी थिंग that comes is my stammering। तो मतलब uh, मैं पूरा दिन स्टैमरिंग के बारे में सोचता हूँ, जब भी अपने uh, जब भी मैं अपने ऑफिस पे जाता हूँ। तो इसके चलते कहीं ना कहीं मैं अपने जॉब के साथ मतलब उतनी अच्छी तरीके से उसको हैंडल नहीं कर पाता हूँ। एक मतलब मेरे माइंड पे एक फियर रहता है। तो मतलब स्टैमरिंग की वजह से स्किल सेट और जो भी मैं फील्ड से हूँ, तो मतलब उसमें कॉम्प्रोमाइज कई बार हो हो जाते हैं। तो इस चीज को कैसे हैंडल करे सर? तो सी आपको पहला ये होता है, मेरे साथ भी काफी बार हुआ है कि कभी कभी थोड़े बहुत, अगर कभी कभी ऐसा होता है, तो हम लोगों को मालूम हो जाना चाहिए कि ये सबके साथ होता है, हमारे शायद शायद स्टैमरिंग की वजह से थोड़ा ज्यादा होता हो, लेकिन कभी कभी होना हो सकता है। थोड़ा हम लोगों को अपने आप को वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, हो रहा है। द फोकस शुड बी अगला दिन जो है,
काफी बार हर किसी फील्ड में हर किसी के साथ ऐसा होता है कि कोई कोई दिन अच्छा नहीं जाता। चैलेंज वो रहती है कि उस दिन को छोड़ के अगला दिन आप एनर्जाइज होके कैसे जाएंगे। हर मोमेंट आप बचा नहीं सकते। ओके, हम लोगों को ये जान लेना चाहिए जो गया वो हो गया, अगला दिन मैं मोटिवेशन के साथ कैसे जाऊं। अगर कभी कभी होता है तो वी नीड टू बी अ लिटिल लिबरल, एक्सक्यूज कर लेना चाहिए हमको। और अगला दिन जो है, हाउ कैन वी गो बैक, वो अपने एटीट्यूड के ऊपर होता है, वो हमको थोड़ा डेवलप करना चाहिए। ये हो गया तो हो गया, नेक्स्ट डे हाउ कैन आई मेक बेस्ट यूज ऑफ दैट। अगर हर दिन ऐसा हो रहा है तो ये सेल्फ अवेयरनेस की बात है कि हम लोग क्यों ऐसा फील कर रहे हैं, किसको आगे जानना है। हर कोई तो जानता है, ये ओपन में है, राइट। हम वो चीज को सोच के, शायद बिगिनिंग ऑफ द करियर में थोड़ा ऐसा होता हो, लेकिन ज्यादा वो टाइम जब बीतता जाएगा ना, हम लोगों को ये मालूम समझना चाहिए कि ये फीलिंग जो है ये नेचुरल है, होता है, उसमें कोई गलती नहीं है। हम लोगों को अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। होता है तो होता है, लेकिन हम लोगों को ये भी जानना चाहिए कि उस फीलिंग की वजह से कुछ फायदा तो नहीं है। हर रोज तो होता है, वो कुछ नया नहीं है। जो हर रोज रिपीट होता हो, उस चीज के बारे में कोई भी हमेशा सेंसिटिव कैसा होगा। जनरली मेरे ख्याल से अगर कोई भी ना, अगर हमको कुछ कुछ घाव आता है तो पहला दिन वो चोट ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर वो घाव थोड़े दिनों में बाद वो सूखना चाहिए ना, वो कम होना चाहिए। तो सेम फीलिंग मेरे ख्याल से ज्यादा तक हर दिन नहीं होना चाहिए। अगर वो कभी कभी होता है मैं समझ सकता हूँ, अगर हर दिन है वो हम लोगों को बोलना चाहिए कि ये इट कांट ट्रबल मी, आई वुड नॉट अलो दिस टू ट्रबल मी ऑन ए डेली बेसिस। हम लोगों को ये भी जानना चाहिए कि आर इन मोस्ट ऑफ द जॉब्स, और वी शुड फाइंड अ जॉब वेयर stammering is not a significant or is not going to be a showstopper for us to exhibit our ability. There are a number of ways in which we can express ourselves, we can contribute to society, we can be productive. हम लोग अच्छी तरह से कर पाएंगे, जो आई मीन वी आर नो लेस देन एनीवन। सो हम लोगों को वो अपनी तरफ बोलना चाहिए कि होता होता है तो होने दो, आई एम केपेबल, आई हैव दिस, आई विल शो इट। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स। कभी ऐसा दिन आएगा जब आपको किसी ना किसी ने अप्रिशिएट करेगा कि ये जो चीज इसने किया वो किसी और ने किया, आपको तब अच्छा लगेगा। जिस चीज आपको खुशी देती है उसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान दे। जो चीज आपको खुशी नहीं देती उसको जितना ध्यान आप कम देंगे उतना उसके ऊपर आप उसका फोकस उससे हटाएंगे। और जब कभी होता है ना तो ज्यादा दान मत दीजिए। हर किसी के साथ होता है, ये बैड डेज हैपन विथ एवरीबडी, एंड एज यू एक्सपीरियंस समटाइम्स थोड़े सिचुएशन में ज्यादा लगता है। जैसा आप धीरे धीरे ये टाइम के साथ वो सिचुएशन बार बार एक्सपीरियंस करोगे, थोड़ा आप इनसेंसिटिव हो जाओगे। नेचुरली इनसेंसिटिव हो जाना चाहिए। जैसा मैंने देखा है, ज्यादा वो सेम सिचुएशन को अगर आप बार बार एक्सपीरियंस करेंगे, ऐसा होगा कि 3-4 बार गलत हो लेकिन एक बार सही होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। ज्यादा चलते चलते ना एक्सपीरियंस के साथ, थोड़ा टाइम के साथ थोड़ा कंट्रोल आ जाता है थोड़ा सिचुएशनों में, राइट। सो ये मैं समझता हूँ मुझे थोड़ा मदद इन चीज से मिली है। प्रेशर सिचुएशन जब मिलेगी तब उसको पहले से प्रिपेयर करने में थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा रिलैक्सेशन मिली है। और थोड़ा सेंसिटिवनेस कम करने से और थोड़ा रिलैक्सेशन मिली है। और थोड़ा क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज कर लेना चाहिए, ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर नहीं लगाना चाहिए। बार बार हर किसी के साथ बैड दिन या बैड डेज होते रहते हैं। फोकस शुड बी ऑन हाउ डू वी रिकवर फास्ट एंड टेक ऑन द नेक्स्ट डे। वंडरफुल सर, बढ़िया सर। ये मतलब मैं 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 उसको एक्चुअली अभी मुझे मुझे दो बार से मुझे याद आ रहा है कि सचिन सर आपका नाम बार बार क्यों बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि एक बार उनको राजा साहब को एक बार जो है आप उसको आप उनको एक बार इनवाइट कीजिए। और आप जो लोग जॉब से जो है रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, उनके पास बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। और वाकई में उनको जो है मतलब
उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट ही बताया सर उन्होंने। वंडरफुल सर। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेते हैं उसका। हाँ अनिल जी का। हाँ अनिल जी बी शॉर्ट, हाँ प्लीज। यस यस। राजा सर, मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जब भी इंटरव्यू या मेरी जो डेली बेस मीटिंग होती है, उसमें मेरा जो आंसर रहता है, तो उसमें मैं कुछ चीज़ें मिस कर जाता हूँ सर। मतलब जो की पॉइंट रहता है वो स्ट्रेस या एंजाइटी के कारण क्या है वो भूल जाता हूँ। और सेम टाइम कभी कभी इंटरव्यू में ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर मुझे कुछ पूछ रहा है और मैं कुछ और आंसर दे रहा हूँ उसका। तो वो चीज़ सर मुझे काफ़ी हैरान करती है। सम टाइम मीटिंग में भी ऐसा होता है कि मेरा मैनेजर मुझे किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में पूछ रहा है और मैं आई डोंट नो कुछ और बोल रहा हूँ, मतलब उसके रिलेटेड कुछ और बोल रहा हूँ। तो ये एक थोड़ा प्रॉब्लम रहता है सर। आई डोंट नो ये स्टैमरिंग के कारण है कि क्या है, बट ये आई वांट सॉल्यूशन फ्रॉम योर साइड इफ पॉसिबल। थैंक यू। I can share some of my input. See if it works. एक चीज जो है कि एडवाइस तो काफी लोग देते हैं, हम लोगों को जो अच्छा लगता हो, जो लगता हो कि ये चीज हमारा काम आएगी, वही चीज लेना चाहिए। क्योंकि हर किसी का एडवाइस हर टाइम पे हर किसी को नहीं चलेगा। तो आपने जो बोले ना दो तीन चीज, अगर आप रेगुलर मीटिंग में भूल जाते हो, जनरली ये स्टैंड अप मीटिंग या स्क्रम मीटिंग जो भी है, हम लोगों को पहले से मालूम हो जाना चाहिए कि क्या बोलना चाहिए। आप लिख सकते हो कि भाई पॉइंट पॉइंट क्या क्या होते हैं। हर बार मैं भी लिख लेता हूँ, अगर किसी चीज के बारे में बोलना हो ना, स्पेशली हमको लगता है कि एक दो चीज नहीं, भूल तब जाते हैं जब हमको बोलना काफी चीजों के बारे में हो। तो उस टाइम पे लिख लेना एक अच्छी चीज है, पहले से लिख लेना, ताकि पॉइंट बाय पॉइंट ना, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना कि पॉइंट क्या है, शॉर्ट हैंड में लिख लेना। वो इज अ गुड प्रैक्टिस फॉर एवरीबडी। तो आपको भी वो कर लेना चाहिए। वो चीज एक बात है। सेकंड टाइम ये थोड़ा कंफ्यूजन अपना रेगुलर मीटिंग में या काफी हद तक इसलिए होता है, हम लोगों का कोशिश ये रहता है, मेरा भी था वो बहुत पहले, अभी भी शायद थोड़ा है, हम लोग बहुत ज्यादा कवर करने का कोशिश करते हैं। ये हम लोगों को ध्यान में देना चाहिए। मैं भी, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होता, ये स्टार्टअप पिचेस जो है ना, कभी कभी मैं स्टार्टअप पिचेस के बारे में बोलते हैं, वो लोग इतना बड़ा प्रेजेंटेशन लेके आते हैं और हम लोग बोलते हैं कि आपको ये 5 मिनट में कवर करना है। और कभी कभी बोलते हैं कि आपको ये पूरा प्रेजेंटेशन 1 मिनट में आपको कवर करना पड़ेगा। कोशिश जनरली क्या रहती है कि जितना बड़ा प्रेजेंटेशन हो, वो जल्दी जल्दी बोल के वो 5 मिनट में खत्म कर लें, या जल्दी जल्दी बोल के वो 1 मिनट में खत्म कर लें। वो एकदम हम लोगों को वो गलत है। हम लोगों को ये स्किल डेवलप करना चाहिए कि टाइम के हिसाब से कंटेंट को कैसा हम लोग काट दें। हर चीज, वो अगर 5 मिनट बोल रहे हैं कि, तो उसका ये मतलब है कि उसको पूरा आपका स्टोरी सुनने का इंटरेस्ट नहीं है। उसको सिर्फ हाईलाइट जो है, जो भी जैसा चैट जीपीटी जैसा करता हो, आप उसको अगर पूछेंगे कि समरी दे दो, तो वो सिर्फ समरी देगा। और छोटा समरी चाहिए तो छोटा समरी देगा। हर पॉइंट को तो कवर नहीं करेगा। आप इसके ऊपर ना, ये एक दिन में नहीं आएगा। आप कंसंट्रेट करते जाइए। आप हमेशा ये सोचते जाइए कि ये जो है मैं बोलना चाहता हूँ, वो कम शब्दों में मैं कैसे बोलूं। वो स्टैमरिंग लोग, हम सब लोगों का क्या होता है, हम लोगों को काफी बार हम लोग टाइम प्रेशर अपने आप अपने ऊपर डाल लेते हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादा बोलने चाहते हैं कम टाइम में। हम लोगों को थोड़ा ये स्किल डेवलप करना चाहिए कि हम लोग ज्यादा कैसे ना बोले, ज्यादा चीज को कम शब्दों में कैसे समराइज करें, फिर फोकस करें कि वो कम शब्दों में जो है वो सही से बोल पाए। वो और एक चीज है, आपको ध्यान में देना पड़ेगा। और कभी कभी मुझे, अब अगर आप भूल जाते हैं तो इंटरव्यू जैसे चीजों में शायद आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, कभी कभी हो सकता है। लेकिन ये एक्सपीरियंस के शायद अगर आपको मालूम है कोई भी चीज, अगर आपको मालूम है कि आप सही नहीं कर रहे हैं, तो नेचुरली आप इसमें उसमें इम्प्रूव होने का ज्यादा चांसेस रहेंगे। टाइम के साथ आप ज्यादा एक्सपीरियंस कीजिए, शायद मॉक इंटरव्यूज अटेंड कीजिए अपने आप। वो अगर आपको लगता है वो फीडबैक लूप है ऑलरेडी, तो एक्सपीरियंस के साथ वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन कभी कभी लोग मालूम नहीं, उनको मालूम नहीं होता कि वो गलत
चीज में जा रहे हैं। या तो कॉन्फिडेंस में अगर वो लोग समझते हैं कि वो सही समझे और वो रास्ते में जा रहे हैं, कभी कभी शायद वो लोग अज्यूम करके चलते हैं। एक चीज करना चाहिए, अगर आपको डाउट है कि हमेशा इंटरव्यूअर को पूछना चाहिए, क्लैरिफाई करना चाहिए उनका क्या मकसद है। वो एक अच्छा इंडिकेशन होता है अगर आप क्लैरिफाई करें उनसे कि सर आपने ये पूछा, क्या आप ये जानना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं। वो अगर आप क्लैरिफाई करेंगे तब आपको, जब आपको एकदम से ठीक से मालूम ना हो कि ये पूछ रहे हैं या बी पूछ रहे हैं या सी पूछ रहे हैं, आपको फोकस मिलेगा। तब सिर्फ आप वो फोकस के ऊपर ध्यान दे पाएंगे, वो आपको हेल्प करेगा। अच्छा सर, एक एक्चुअली में मेरा भी एक क्वेश्चन था सर। जैसे कि हम लोग अब जैसे टीसा में रहे हैं, जो है, तो और इधर बहुत सारे लोग हैं जो 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 उसको ऑनलाइन लाउंज को होस्ट करते हैं एज अ वॉलंटियर। मैं जैसे अभी जो है ऑनलाइन मीटिंग होस्ट कर रहा हूँ। अफजल खान, जो अफजल भाई जो उसके कहेंगे, वो दिल्ली एसएचजी होस्ट करते हैं। यथार्थ जी, संतोष खेरे, राज मंसूरी, ये लोग, सिद्धेश, ये लोग जो है उसका ऑफलाइन भी मीटिंग जो है उसका होस्ट करते हैं। तो सर, जो जो हम लोग जॉब कर रहे हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं, उसके साथ साथ ये जो हम वॉलंटियरिंग सर्विस देते हैं, तो कितना जो है बेनिफिट मिलता है, जो हमारा सेल्फ होता है उसको उसको जो है मतलब बाहर करके आने के लिए, उसको निखारने के लिए कितना कारगर है ये सर, ये? देखो, मेरा ये स्पेशली टीसा का जो प्रोग्रेस है लास्ट 10 सालों में या 10-15 सालों में, ये अपॉर्चुनिटी देना हम लोगों को, काफी लोगों को देखा हूँ जब एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं ना, जो फीलिंग्स अपने आप में रह जाते हैं, वो अच्छी चीज नहीं होती है। तो काफी थोड़े बहुत लोग स्टैमरिंग के होने के बावजूद भी अच्छी तरह से एक्सप्रेस करने का कोशिश करते हैं, वो ठीक है। लेकिन टीसा ने अभी इतने फॉरम दिए आप लोगों को, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस दिया, एसएचजी दिया, जितने फॉरम में, इतने फॉरम है जहां पे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये खुद में एक्सप्रेस करना, जो अंदर का जो तकलीफ होती है या जो भी दैट सप्रेस्ड फीलिंग्स दैट वी हैव, वो थोड़ा एंग्शियसनेस रिमूव करता है। हम लोगों को लगता है कि ये चीज में मैं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, वी फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स। इंटरव्यूज के बारे में प्रिपेयर करना हो या जो भी हो, ये हमारे जो है ना, ये वॉलंटियरिंग जो है, हम लोगों को दो तरह से देखना चाहिए। बाकी लोगों को हेल्प मिल रहा है, वो अच्छी चीज है। ये सब एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके जो हम लोग अदरवाइज, ये फॉरम में हम लोगों को चांस नहीं मिलता जनरली, लोग कुछ और, आई मीन देयर आर अदर पीपल बेटर, जो भी है, उन लोगों का देखने का जो स्केल है वो अलग होती है। ये अपॉर्चुनिटी, हर अपॉर्चुनिटी हम लोगों को हेल्प करती है। सो दिस इज टीसा एंड ऑल these activities, as much as they are helping others, I feel they benefit you, especially if you are bothered by it. So you should look at it that, hey, वो एकदम, I mean, the more number of, when I was giving presentations, पहली बार बहुत डर लगा। जैसा जैसा मैं प्रेजेंटेशन देता गया, काफी प्रेजेंटेशन में मुझे कंफर्ट थोड़ा थोड़ा ज्यादा लगने लगा। ये अपॉर्चुनिटी जो टीसा देती है, वो बाकी लोगों को हेल्प करती ना करती, लेकिन अपने आप को जरूर हेल्प करती है। वो एक चीज है। और दूसरा चीज, मैं अभी तो मैं वॉलंटियरिंग, मैंने जैसा बोला कि मेरा इंट्रोडक्शन में, अभी फिलैंथ्रोपी का एक और चीज में भी मैं हिस्सा ले रहा हूँ। ये पर अपना क्या होलसम सेटिस्फैक्शन के लिए शायद हम लोग ये रियलाइज करवाता है कि वॉलंटियरिंग कितना अच्छा चीज है ना। हम लोग किसी और को कुछ, जो हमको मालूम है या हमारे स्किल्स और एबिलिटी है, जो उनका दान कर रहे हैं और किसी और और कोई उससे बेनिफिट हो रहा है, तो इट मेक्स यू फील गुड एट वेरियस लेवल्स। वो शायद एज अ पर्सन जरूरी है, वो शायद वो, या वो टीसा का सेल्फ हेल्प ग्रुप में वॉलंटियर करे या कुछ किसी और चीज में आप वो वॉलंटियर करें,
हम लोगों को ये वॉलंटियरिंग शुड बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। वो उस चीज से बाकी लोगों को हेल्प मिलती है, हमारा लाइफ को थोड़ा मीनिंग मिलती है। सो वो मेरा मानना है, both from your stuttering perspective and even otherwise, that you should participate in these things. वंडरफुल सर, वंडरफुल सर। आप मतलब जो है आपसे बात करके बहुत सारे क्वेश्चन तो वैसे ही जो है जो पूछने थे वो अब नहीं पूछूंगा मैं जो बाकी लोग जो जो कहेंगे उनके पास चलते हैं जी। संतोष जी प्लीज, संतोष खेरे जी प्लीज Yeah. सर जी। Hello, am I audible? Yes. Yeah. Hello, sir. I am Santosh Khaire from Bangalore. I have two questions, sir. So before entering the interview room, we will be very confident, normal. As soon as we enter into that interview room, as the interview starts, our anxiety builds up, the pressure. So how to deal with that pressure on the spot? And the other question is, if they ask what is your expected salary, so how should we answer for that? Yeah, two different. So first question जो है, there is, see, we only can concentrate on what we can control. By focusing or trying to control things that we cannot control, we are just putting more pressure on ourselves. Yeah. So हम लोगों को ये जानना चाहिए कि हमारा कंट्रोल में क्या है। अगर आपको लगता है कि पहले प्रिपेयर करने से, मेडिटेशन से या थोड़ा डीप ब्रेथ्स लेने से, अगर आपको लगता है कि आपको ध्यान में रखना चाहिए किस चीज से आपको रिलीफ मिलती हो, या तो वो स्टैमरिंग के बारे में हो, या तो वो प्रिपरेशन हो, और कभी कभी स्पेशली ये यंग लोगों के लिए ना, वो इंटरव्यू में ऐसे जाते हैं कि बिना प्रिपेयर करके, और मुझे मामन काफी हद तक ऐसा लगता है कि वो स्टैंडर्ड रिपीटेटिव आंसर्स दे रहे हैं। आजकल शायद थोड़ा कम हो गया, लेकिन पहले तो ये बहुत हद तक था। आंसर देखते ही मालूम होता था कि ये उनका खुद का आंसर नहीं है। ये सारे चीजों को अवॉइड करके थोड़ा प्रॉपर रिहर्सल, हम लोगों को स्टटरिंग तो है ही, लेकिन बाकी नेगेटिव जो है वो सब कवर कर ले, वो सब गिल्ट फीलिंग नहीं होना चाहिए, प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। प्रिपरेशन इज आवर बिगेस्ट बिगेस्ट फ्रेंड। और हमको ये ध्यान में, अवेयरनेस में लेना चाहिए कि वी कैन ओनली कंट्रोल थिंग्स विच आर इन आवर हैंड्स। We should not feel bad or guilty about things that we cannot control. अगर हमको लगता है कि उन लोगों को पहले बोल लेने से, एंड डिपेंड्स अपॉन द जॉब, जैसा मैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी फील्ड में हूँ, काफी हद तक पीपल आर टॉलरेंट बिकॉज द टैलेंट इज सो स्केर्स। इफ यू हैव द राइट एबिलिटी, I don't think stuttering, there are enough types of jobs where you can contribute effectively, right? So, I mean, even otherwise, it always pays to be honest, right? Yeah. And you have to say that, hey, this is an issue which I face more during interviews because of the pressure, so give me some extra leeway time. I think it's good because it helps us. You are doing it because it helps you, right? अगर कोई देड़ दिमाग है, अगर वो समझता नहीं है, तो we can't let our life be ruled by somebody who doesn't understand. We have to assume that there are sane people on the other side, which is true most of the times. Yeah, okay. So only focus on what is in your hand. Let's not feel bad or guilty about things which are not in our hand. That would be my short answer for that. Okay, sir. The other one, expectations of salary, answer क्या बोलना चाहिए? This is, I don't know, I mean, they're asking because if you have a definite expectation, see, what is the standard answer? I'll tell you what generally in the software industry, people are generally try to give. If it is like for like company, you are going from one services company to other services company, or one type of company to similar company, unless you are moving very fast, generally 30% to 40% is an accepted norm, especially in the IT technology industry. Okay, so you know that answer to be on the safer side. Aajkal forums mein, Glassdoor वगैरह में, you would know, especially if you have some friends, you would also know. So पहला चीज, that is a short answer, not necessarily the right answer. The key answer for you, at least my focus has always been, and I may not be the right guy to hence answer this question, is that
I very rarely made a move because of salary. I always made a move because I wanted to gain something beyond salary. अगर आप सही जगह पे हो, जो आपके skills को सही तरह से utilize करती हो, the natural growth that you would see would automatically take care of. In most of the companies, if you are a good performer, there would be little bit here and there sometimes. You should be conscious. If you are being cheated, you should be aware. But by and large, in a good company, you would get your due course. Otherwise, you're in a bad company, right? So move for the right reasons. Don't move for the salary. General norm 30% है. अगर आपको लगता है कि that is important in a like for like company, लेकिन अगर आप कॉग्निजेंट या टीसीएस छोड़ के अमेजोन में जा रहे हो तो वो जंप तो काफी ज्यादा होना चाहिए. सो व्हेन इट इज नॉट अ लाइक फॉर लाइक कंपनी, इट्स अ फंक्शन ऑफ द कंपनी. बट आप salary should be secondary. You should have much more stronger reasons to make the move than the salary. Salary would take care of itself over a period of time. Yes, just I would like to add one line about myself. I have 18 years of experience, and from past 18 years, I'm working in the same company. Right now, I'm planning to move. So, what all technologies I have worked, now I have learned all the technologies which are used in my company. So, I want to move to a better place and for better hike. So, how should I expect for that? That's a slightly personal question. So what we can do, Mr. Santosh, is you can reach me offline. You can Yeah, have yes, sir, probably sure. you can shoot the profile to me. I'll take a look, and whatever you must have some thoughts too. I can share whatever thoughts that I have, because I need to understand your area, and if I am the right guy to be able to assist and give you guidance, we can look at that. My number is there, my email is there. Anyone can reach me. Yes, sir, thank you. थैंक यू. अच्छा, एक विशाल जायसवाल जी ने जो है हैंड रेस किया हुआ था, तो अगर उनको कुछ पूछना हो तो विशाल जी, आर यू देयर? Yes, I'm there. First of all, good evening, sir. Uh, so, uh, so my question is to you: how can you do study at home? That time you were crack the exam. So can you provide some tip? See, I'll be honest. My tips didn't work for my son. ये तो सर मेरे को भी जानना है सर, ये तो प्लीज. See, ये I don't have an easy tip, because there were certain areas where I was pretty good naturally, especially in math and stuff like that. So that was helping me. अगर मुझे ये चीज के बारे में मालूम करना चाहिए, जिस सब्जेक्ट में मैं अच्छा नहीं हूँ उनमें कैसा मैंने हैंडल किया, वो ऐसे थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स थे. वो मेरा परफॉर्मेंस थोड़े कभी कभी ठीक था, वो सिर्फ प्रिपरेशन से हुई है. एक चीज है कि मुझे ना, एक चीज है टाइमिंग, एक चीज है ये. थोड़े बहुत चीज कभी काम नहीं करेंगे. ये ग्रुप स्टडीज में ना आप तभी कीजिए जब आपको 100% मालूम हो कि वहाँ उसमें आपको हेल्प हेल्प होती है. जनरली ये करते हैं ग्रुप स्टडीज, वो चिट चैटिंग में ज्यादा टाइम होता है, वो हेल्प नहीं करती है. दूसरा चीज, हम लोग कभी ये सोचते थे कि मैं ये सब्जेक्ट मैं उनसे ले लूंगा, वो समराइज करेगा, वो चीज लेके मैं कुछ करूंगा. तो आपको खुद को स्टडी करके खुद को एफर्ट करने से अच्छा कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, वो आपको समझ लेना चाहिए. नंबर 3, आपको एक बार में कोई भी चीज नहीं आएगा. मिनिमम सेकंड रीडिंग तो आपको होना ही चाहिए एग्जाम से पहले. अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, अगर आपको वो है,
तो कभी भी जब आपको लगता है कि सब्जेक्ट बहुत लंबा हो ना, कभी कभी ये करना चाहिए कि अ, जब तक आप सेकंड रीडिंग नहीं होगा ना उसका, आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। तो कैसे करें सेकंड रीडिंग? या तो थोड़े बहुत लोग ये करते हैं कि फर्स्ट रीडिंग में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, फिर सेकंड रीडिंग उनसे शायद ना हो पाए। ये कर लेना चाहिए थोड़े बहुत। ये टेक्निक होते हैं ब्राउजिंग बोल के, या कुछ और नाम भूल गया स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं, लेकिन पहला वर्क में ना, पहला रीडिंग में ये आप ट्राई कीजिए। अगर आपको ये जमता है तो अच्छा है। पहला रीडिंग में वो जो जो टॉपिक्स है थोड़े बहुत उनके ऊपर अनुमान होना चाहिए, तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए क्या क्या टॉपिक कवर कर रहे हैं, किस चीज को किस चीज से रिलेट कर रहे हैं। फिर आप सेकंड टाइम जब पढ़ेंगे ना, तब आराम से आपको मालूम भी होगा कि आगे क्या आने वाला है। थोड़ा प्रेशर कम होगा, तो वैसा आप प्रिपेयर करके थोड़ा आपको हेल्प मिल जाएगा। और एक चीज है कि आपको क्वेश्चन पेपर हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए। वो कभी भी, थोड़े बहुत लोग, आई डोंट नो योर एज एग्जैक्टली विशाल, योर फोटो लुक्स pretty young. So which class are you in, Vishal? Sir, currently I am doing BCom BCom, right. right now. Right. So maybe some of them you know already. So sometimes there is no substitute for full practice of the actual question paper. Mimic the environment as much as possible and do it seriously. कभी कभी ऐसा करते हैं कि ये तो है, करना है, लेकिन आप 2-3 बार भी प्रॉपर एनवायरनमेंट में करो ना, लेकिन अच्छा फुल कंसंट्रेशन लेके करो। एंड द टाइमिंग, what times work for you. Try not to take a break for any time less than an hour, क्योंकि कंसंट्रेशन थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप जल्दी ब्रेक ले रहे हो तो उतना जल्दी ब्रेक मत लीजिए, 1 घंटे के बाद आप ले सकते हैं ब्रेक अगर आपके हिसाब से। और आप ये भी जान लीजिए कि कौन सा टाइम आपको जमता है। किसी किसी को सुबह जमता है, किसी किसी को लेट नाइट जमता है। जो स्टाइल आपका हो, या कभी कभी लगता है कि थोड़ा उधर भागने से या कुछ कार्डिया करने से आपको थोड़ा कंसंट्रेशन मिलती हो, वो चीज को भी आपको ध्यान में रखना होगा। कभी कभी लगता है कि ये नहीं जम रहा है, तो एक वॉक ले लीजिए आप। मन को एकदम वो थोड़ा बहुत स्थिरता आना चाहिए, तभी आपका ऑब्जॉर्प्शन थोड़ा अच्छा होगा। ये थोड़े बहुत टेक्निक है वैसा। और पता नहीं, मैं शायद कुछ अलग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर कुछ कर रहे हैं तो बोल दीजिए। मैं तो, मेरा मन में तो अभी यही चीज आ रहे हैं। ये एक्चुअली सर, ये वंडरफुल था ये वाला तो सर, ये तो Thank you, sir, for sharing. तो डॉक्टर मनोहर जी, जो 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 कहेंगे, वो काफी देर से हैंड रेस किए हुए हैं, उनका हाथ थक गया होगा, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा वो अपना हाथ जो है नीचे कर करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज जी। डॉक्टर साहब। Thank you so much for opportunity. जैसी बातें मैं स्टार्टिंग से सुन रहा हूँ, वैसी बातें अगर सुनने को मिलती है तो मैं शुरू से आखिर तक अपना हाथ उठा के रख सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर दीज ब्यूटीफुल वर्ड्स। मेरे 2 क्वेश्चन हैं छोटे छोटे। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हेन आई इंटर द रूम इन इंटरव्यू, मैं जब बात करना शुरू कर देता हूँ, व्हेन आई टॉक, तो अगर मैं स्टेमर कर रहा हूँ, और देयर देयर इज अ 2 टाइप ऑफ इंटरव्यूज, एक जो कोऑपरेटिव होंगे, एक जो नहीं होंगे। तो जो होंगे उनके सामने तो मैं अपनी स्टेमरिंग को एक हद तक मैनेज कर लूंगा, टेक्निक यूज कर लूंगा जो टीसा में सिखाई जाती है। लेकिन जो कोऑपरेटिव नहीं है, वो अच्छे से सुन नहीं रहा है, उसको चीड़ आ रही है स्टेमरिंग से, और ये सब है, तब वहां पर कैसे अपने आप को एंजाइटी लेस रखा जाए, और अपनी बात फिर भी रखी जाए अनकोऑपरेटिव इंटरव्यू के सामने भी। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये कि जो हम रेज्यूमे देते हैं, क्या हमको उसमें ये मेंशन शुड बी मेंशन दैट कि आई एम स्टेमर? तो ये 2 क्वेश्चन है सर। दूसरा क्वेश्चन शायद आसान है, रिज्यूमे में मेंशन करने का जरूरत नहीं है।
वो कौन, I mean, the point is that the people who are shortlisting, looking at it, and the people who are interviewing may not always be the same, right? So there is no reason. Let the resume focus on what you bring to the table. I think in the interview, if you feel that it gives you more comfort, you can mention that. Second part of it, just the awareness, right? First and foremost, the awareness. You already have it. That some interviews, you have the space. Some interviews you don't, right? So just it's not your fault. First of all, हम लोगों को ये समझ लें, काफी हद तक हम लोग अपने आप पर अपने ऊपर प्रेशर डाल देते हैं. हम लोगों को एक दो चीज समझ लेना चाहिए. अगर कोई एग्रेसिवली बोल रहे हैं तो पहले उनका जो एग्रेसिवनेस या जो भी है, उनका क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि क्या है वो क्वेश्चन. एंड वी शुड मेक श्योर, शायद वो लोग इसलिए एग्रेसिव हो रहे हैं क्योंकि उन लोगों को लगता है कि आप ठीक से आंसर नहीं बोल रहे हो. तो in some cases you have to ask, make sure that, sir, this is the question, sir, give me 2 minutes, I will answer you. You can ask for that time. I'm a stutter, डॉक्टर लोगों को तो मालूम होगा ही होगा. I'm a stutter, but please give me time to kind of do that. थोड़े बहुत लोगों का नेचर है कि हमेशा काटना. वो हम लोग जो होते हैं ना, उतना जल्दी स्विच नहीं कर पाते. हम लोगों को एक थॉट रहता है, हम लोग बोलते हैं अगर कट करेंगे बिकॉज ऑफ द स्टटर, वी स्टिल आर स्टक ऑन द प्रीवियस ट्रेन ऑफ थॉट. वो होता है, आई मीन वो नेचुरल है, हमारा गलती नहीं है. अगर हो सके तो हम उनको बोलना चाहिए. अगर उस वजह से आपको लगता है कि ये है, तो आपको बोलना चाहिए कि सर, यू नीड टू गिव मी स्पेस, आई स्टटर, यू लेट मी फिनिश इट. वो चीज बोलने से कुछ प्रॉब्लम है. आई मीन दैट इज द राइट थिंग टू डू, आई फील. तीसरा चीज, keep it concise. Sometimes they cut because we are not very concise. We keep on elaborating. So we should look at what is that we can do. Quite often being concise to the point and saying the answer helps. Sometimes we might feel that he's cutting, but he might be cutting because he's growing impatient, not because of your stutter, but because you're off track. So make sure that you're on the right track. Make sure that you are concise. So those are the things that are in our control. Sometimes what happens, quite a few times, the focus goes, everything wrong that happens, we attribute only to stuttering. That's not always the case. So let's not assume that, hey, that's the only thing which is troubling us, and leave aside everything else. So बाकी चीजों के ऊपर हमको वो ध्यान में देना पड़ेगा. अगर ऐसा ही कोई सरफेरा आदमी है तो हमेशा काट रहा है, हमको आंसर नहीं दे रहा है, तो 10-20% तो वैसा तो हर किसी चीज में लक तो होता ही है, राइट? इवन इफ अच्छा आदमी हो जो स्टैमरिंग ना करता हो, उस चीज के बारे में भी लक होता है. देयर इज a few extra percentage probably. Let's not take it so much to the heart. That's a part and parcel of life, and we'll live with it. But we should not attribute it to the wrong things. So let's make sure that it's only due to that. Make our attempt, and then leave it. I mean, let's not feel guilty at least that we have not done our best. अच्छा, हम लोग प्रिपेयर किया हो, हम लोगों ने जो चीज सही लगता हो वो चीज किए हैं, फिर भी आंसर अच्छी तरह से नहीं हुआ. हम लोगों को लगता है कि फॉर रीजंस एट्रीब्यूटेबल टू द अदर पर्सन, वी शुड नॉट फील रॉन्ग अबाउट दैट. अगर इंटरव्यू में सक्सेस होती है, अच्छा है, नहीं होता है तो भी अच्छा है. मे बी इट्स ऑल फॉर गुड. लेट्स फाइंड सम अदर प्लेस. वंडरफुल सर. जो हमने सर आपसे जो टाइम मांगा था वो तो हमने अपना कंज्यूम कर लिया है हमने. तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमें थोड़ा सा 20 मिनट और अगर आप हमें देंगे तो हम लोग ये जो 3-4 क्वेश्चन है इसको भी हम लोग लेते हैं सर, प्लीज. तो नो प्रॉब्लम, लेट्स गो. बस गणेश पाल जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. वो कोशिश करें शॉर्ट में ही रहे. दिनेश
पाल जी आप सुन रहे हैं? आप म्यूट में है। आई थिंक शायद हाय दिनेश। गुड इवनिंग सर। सर मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि हमारे साथ में कभी कभी तो जब हम किसी भी क्षेत्र में अपना इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम जब किसी सेंटेंस को सोच कर जाते हैं कि हमें इस टाइम पे ये सेंटेंस बोलने हैं, तो 100% हम उन सेंटेंस में से किसी एक शब्द के ऊपर अटकते ही हैं। और जब हम किसी भी चीज को बिना सोचकर बोलते हैं तो फिर हम उसको बहुत ही अच्छे से बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा क्यों होता है वो एग्जैक्ट रीजन बोलना मुश्किल, मैं शायद सही नहीं हूँ वो आंसर देने के लिए, लेकिन जनरली वो सजेस्टेड वे ये है कि आप रट के मत जाइए। क्योंकि वो क्या होता है, वो कभी कभी ना जो क्वेश्चन जो होता है और आंसर जो होता है वो शायद मैच ना हो। आपको हमेशा पॉइंट याद रखना चाहिए, सेंटेंसेस नहीं। आप सेंटेंस को बनाना चाहिए पॉइंट्स के ऊपर। जो लोग पूछ रहे हैं उस हिसाब से अपना पॉइंट कलेक्ट कीजिए, फिर सेंटेंस को बनाइए। पूरा सेंटेंस रट करने में ना दो तीन चीजें हो सकती है। क्योंकि हमको लगता है कि इंटरव्यू में अगर हमको लगता है कि ये चीज बोलने में कुछ तकलीफ होगा, फिर आप रटे हुए हैं तो वही बोलना पड़ेगा, आपको कुछ स्विच नहीं कर सकते। और रिजिड रखने से शायद प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको सिर्फ पॉइंट पॉइंट मन में रखना है, सेंटेंस ऑन द स्पॉट बनाना है। अगर आपको दिक्कत होती है सेंटेंस ऑन द स्पॉट बनाने में, तब आपको वो लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज के ऊपर कमांड, राइट, वो इम्प्रूव करना चाहिए। अगर आपको, अगर ये अंग्रेजी में होती है, काफी लोगों को अंग्रेजी में इसलिए होती है क्योंकि लैंग्वेज के ऊपर उनको कमांड नहीं होता है। जब लैंग्वेज के ऊपर कमांड आता है तो ये ब्रेन पे ऊपर प्रेशर कम होता है, तब आपका स्टैमरिंग भी हल्की होती हो। अगर आप, कई बार ये सुनता हूं कि मैं हिंदी में स्टैमरिंग नहीं होती है, अंग्रेजी में स्टैमरिंग होती है। क्यों होती है? काफी हद तक इसलिए होती है क्योंकि आपको लैंग्वेज के ऊपर आपको कमांड नहीं है। आपको वो कमांड सीखना है। अगर सीखेंगे आप, जैसा आप हिंदी में बोल पाए वैसा आप अंग्रेजी में भी बोल सकेंगे। लेकिन वो रटना नहीं है, पॉइंट पॉइंट याद रखना है और सेंटेंस बनाना है। वो कमांड आना चाहिए हमारे ऊपर, हमको उस लैंग्वेज के ऊपर प्रैक्टिस करता रहना वो लैंग्वेज सीखने के लिए। वंडरफुल सर। सुशील जी आप प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्लीज। थैंक यू। मैं अभी फाइनल ईयर बीटेक में पढ़ रहा हूँ। तो मतलब आप भी मतलब एज ए नॉर्मल एचआर मतलब सोचिए, और मैं भी मतलब नॉर्मल पर्सन हूँ। जब आप एक बंदे को देखते हो मतलब जिनको स्टैमरिंग प्रॉब्लम नहीं है, और आप भी ऐसे एचआर हो कि आपको भी स्टैमरिंग प्रॉब्लम नहीं है, तो एज एचआर आपकी मतलब क्या होती है मेंटेलिटी कि आपको इस बंदे में कम्युनिकेशन स्किल किस परसेंटेज, मतलब कम्युनिकेशन स्किल और टेक्निकल स्किल कितनी चाहिए? इतना ही मतलब परसेंटेज वाइज, मतलब 50% चाहिए या 60% चाहिए? उतना ही। सी, कम्युनिकेशन स्किल्स उस हद तक चाहिए जिस हद तक हम, या ग्रुप मीटिंग में हो या क्लाइंट के साथ जो हो, हमको एक्सप्रेस कर पाए। 80-90% ऑफ द मीटिंग, 80% ऑफ 80-90% ऑफ द टाइम्स ऐसा ही होता है। कभी 10% में ऐसा भाग दौड़, खूब हल्लाना चिल्लाना वैसा होता है, वो बहुत कम होता है। वो 90% ऑफ द टाइम आपको एक्सप्रेशन of the idea is the most important aspect of communication, and many fluent people struggle a lot of times, except this expression is a function of your command of the subject, your formulation of thoughts, क्या चीज बोलना है, कैसा स्टोरी बनाएंगे आप जैसा कि वो सही से बोल सकें, and your command on the language.
your command on the subject, your formulation of the story, and your command on the language. Then comes your expression. अगर ये तीन चीज आपके सही हो, you can also figure a way in which you make it concise so that you don't put more pressure on yourself. आप इतना अच्छे से बोलें, so ये चीज आपके हाथ में हो तो I mean then it is good enough. So कभी कभी if you are stammering a lot, right, for some of the technical hands-on jobs, this still may not be an issue because there are a number of ways, because your oral communication only is required probably in a day, especially for project purposes, right? I mean, in a day, not more than 5% of the time, right? It doesn't hurt anybody to give a little extra time for you to express yourself. So if I'm on the other side as an interviewer, as a non-stammerer, if your ability is good, and if I know that your formulation of thoughts is good, I would rather, I mean, it's not just oral communication, right? It's also written communication. There are so many other things. By looking at your resume, I would have an idea. By looking at your language, I would have an idea. So I won't, and I don't think anybody straight as in who speaks fluently should consider that as a disadvantage beyond a certain point. अगर आप sales के job में जाते हो कभी-कभी, then if that particular thing that you're aspiring for, your disability is a significant, your whatever the stuttering is a significant constraint for you to deliver in that job, then we should think if that is the right choice of a role for us. But beyond that, for most of the things which involve moderate amount of communication, stuttering should not be a disability. I'm saying moderate amount of communication. I'm not saying zero amount or very less amount of communication. Software engineering, technical jobs is something that requires moderate to low amount of communication. I don't think stuttering should be a disability there. Sales probably is something which requires relatively higher amount of communication. फिर भी आपको लगता है कि आप एकदम सही है, फिर भी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन depending upon the role, and you should have fair confidence on how you can fulfill the requirements of that role. For moderate thing, no straight guy should kind of reject you because you stutter. In fact, I think people are becoming more and more aware. There is, in fact, something called, most of the organizations also have this diversity, inclusion, and all of that stuff. We don't exactly fit in that, but if you express your constraint, right, you straight away, I mean, any conscious guy, any senior guy would realize that and would give you a benefit of doubt, would not read it against you. हमारा ये एक आदमी है, मैंने सुना था वो जयपुर कॉन्फ्रेंस में he was on video from Bangalore. He is in the HR department of one of the big MNCs. A diversity inclusion के बारे में he knows more. He can talk very well. And why, how to handle that. I don't remember the guy. I don't know, Rahul, if उनके साथ बात हुई है आपकी? पवन सानंद सर. हाँ, पवन सानंद सर. उनके साथ भी आप एक बार, I mean, अगर हुई तो अच्छा है. He knows about, he specifically made the point about the diversity and inclusion. Right. Wonderful, sir. अफजल खान जो कहेंगे सर, उनका भी क्वेश्चन लेते हैं प्लीज. अफजल भाई. हाय सर, है गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, गुड आई थिंक इवनिंग. आप सर है बहुत है बढ़िया होंगे. आपका है चेहरा हमेशा हंसता दिखता है. ओके, तो सर मैं ये बोलना चाहता था कि सर अगर हम लोग को है किसी दूसरी फील्ड का एक्सपीरियंस है, हम लोग है चाहते हैं किसी है दूसरी फील्ड स्विच करना. पर क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि जो हमारा यहाँ लास्ट कंपनी का एक्सपीरियंस है, हम जिस कंपनी में जाए वो थोड़ा बहुत इंक्लूड होता है, बट वो होता नहीं है. और सर मैं इसके साथ एक और चीज ऐड करना चाहूंगा. की तरह जैसे हम लोग टीका के अंदर वॉलंटियरिंग करते हैं, तो हम है वहां पे इंटरव्यू के अंदर या अपने रिज्यूमे के अंदर उस चीज को
तो फिर कैसे इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वॉइस ब्रेक हो रहा था, मैं पूरी तरह से सुन नहीं पाया, मैं सिर्फ ये सुन पाया, अगर वो गलत है तो आप मुझे करेक्ट कीजिए। मैं ये सुन पाया कि अगर आपका पिछले वाला एक्सपीरियंस जो है वो रिलेवेंट नहीं है आप जिस चीज को चाहते हैं, तो उस चीज को कैसे हैंडल करें, सिर्फ वो समझ में आया मुझे। और अगर पूरी तरह से समझ में ना आया, अगर किसी और को अच्छा समझ में आया तो मुझे वो एक्सप्लेन करें। एक्चुअली सर जो जो अफजल भाई जो है वो जो है करियर स्विच की बात कर रहे हैं। वो जो है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड से है, मतलब उसके, तो अब जो है वो जिस फील्ड में जाना चाह रहे हैं वो डाटा साइंस की फील्ड है सर वो। तो वो उसके बारे में मुझे लगता है कि पूछना चाहते हैं। जी हाँ। हाँ जी। अरे राहुल भाई ने बिल्कुल सही बोला। और मैं, और मेरा एक और इसमें एंड पॉइंट है कि जो हम लोग है टीसा में है वॉलंटियरिंग करते हैं, तो हम लोग उसको है रिज्यूमे में किस तरीके से है मेंशन है कर सकते हैं? आप मेंशन कर सकते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर या वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज में। वॉलंटियरिंग ऑलवेज हैज अ पॉजिटिव पॉजिटिव leaves a positive impression on people who are reading. That you're volunteering is always a good sign because every company requires people who volunteer. Volunteer करने वालों का हर कंपनी में जरूरत है। They always look for those people, so that showcases energy। अच्छी बात है, वो आपको जरूर मेंशन करना चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर में मेंशन कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है, अगर आप आपको ये चीज है कि अगर आप नया जॉब लेना चाह रहे हैं और अगर आपका पुराना एक्सपीरियंस रिलेवेंट नहीं है, तो आपको पहले ये क्वेश्चन करना चाहिए कि आप बिल्कुल फ्रेशर की तरह जाएंगे, वो आपको मानना है या नहीं है। अगर आप या आप ये चाहते हैं कि अपना पुराना एक्सपीरियंस को थोड़ा वेटेज मिले। हम लोगों को कभी कभी पुराना एक्सपीरियंस को अगर वो वेटेज नहीं देना चाहते हैं हम लोग, अगर वो रिलेवेंट नहीं है तो ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। वो एक चीज है। दूसरा, कैसा वो करें, तो पहला चीज तो see it's not about switching as much, do you have the capabilities, जो जिस चीज में आप जाना चाहते हैं उसमें आपको पेडिग्री एक्सपर्टाइज है क्या, कैसे वो लेके आए आप। ये डाटा साइंस फील्ड में जो है, आप किसी से जॉब मांगने से पहले बहुत चीजें इंटरनेट के ऊपर कर सकते हैं आप। अगर आप एकदम सही कैपेबिलिटी है तो इंटरनेट में रिसर्च करके आप ऐसा चीज, ऐसा गवाह पेश कीजिए उनको कि ये वर्क जो है मैंने किया है, उसको एक्सपर्टाइज को आप गिटलैब में डाल के उनको दिखा दीजिए। ये सब चीज के लिए एक्सपर्टाइज की जरूरत है और हार्डवर्क की जरूरत है, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत आपको स्किल्स जानना चाहिए, थोड़ा टैलेंट होना चाहिए और फिर वर्क करना चाहिए। अगर आप ऐसा सबूत उनके सामने पेश करेंगे तो कोई भी आपको चांस दे देगा। स्पेशली डाटा साइंस में लोगों की जरूरत, अच्छे लोगों की काफी जरूरत है। काफी लोग जो ये सीख करते हैं जॉब ना, उनको ठीक से या तो एक्सपर्टाइज नहीं है, वो लोग चाहते हैं कि इसमें जॉब मिले और जॉब मिलने के बाद सीखें। अगर इतने लोग अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो जॉब मिलने के बाद सीखना इज नॉट, आई मीन अगर बहुत अच्छे हैं आप बाकी चीजों में वो शायद हो सकता है, लेकिन आपको उस चीज के ऊपर रिले नहीं होना चाहिए। पहले आप सीखिए, शोकेस कीजिए कि मुझे ये चीज आता है, मैं कर सकता हूँ। डे वन के ऊपर मैं अपने आप अपने पैरों के ऊपर खड़े होके खड़े होके आपको कुछ डिलीवरेबल प्रोडक्टिव वाला चीज मैं दे सकता हूँ। अगर आप ये चीज उनको दिखा पाएंगे तो बहुत से लोग आपको जॉब देने के लिए तैयार होंगे। लेकिन क्योंकि क्वालिटी लोग टेक्निकल किसी भी चीज में एंट्री लेवल में नहीं है। इंडिया में हर चीज में कोई भी चीज जो हो, क्वालिटी वाले के लिए जैसा भी जॉब मार्केट हो हमेशा चांस होती है। आपको प्रोएक्टिवनेस दिखाना चाहिए, वर्क करना चाहिए, या समझ लेना चाहिए कि किस चीज में आपको टैलेंट है। आप थोड़ा वो एक्सपीरियंस ले लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको सही में लगता है कि आपको वो टैलेंट है तो वो बाहर आ जाएगा।
बहुत सारे एवेन्यूज है इसमें। वंडरफुल सर। सर मेरा भी जो है एक क्वेश्चन है सर। सर मेरा जो है, मैं फाइनेंस फील्ड से हूँ, और जो है सर मेरा, अब मैं जो है बिल्कुल लास्ट स्टेज पर हूँ फाइनेंस से जो है लॉ के अंदर इंटर करने के लिए सर। अब मैं अब बिल्कुल ये स्टार्टिंग में तो ये था कि मैं पढ़ रहा था कि फला फला जो थे वो जो स्टैमर करते थे, वो उन्होंने लॉ किया, फिर उन्होंने फला किया, ये ढिकड़ा किया। तो वो वहां तक तो मैं आ गया। अब ये भी बिल्कुल आखिरी वाला जो फेज है, मैं इस पर खड़ा हूँ। और अब इधर से मुझे सिर्फ सिर्फ जो है वो बार वाला जो एग्जाम है वो दे करके इंटर करना। अब मुझे जो है मैं जब, जो लोग नए लोग हैं जिन्होंने अभी जो ज्वाइन किया है, वो बताते हैं कि भाई जो जो है मतलब जो स्टाइपेंड भी उनको वो जो है इतना नहीं मिलता कि वो अपने आने जाने का जो है वो बियर कर पाए। और जो जो है वो पूरा दिन जो नए जो होते हैं, जो नए लॉ पास आउट होते हैं, उनको वो पूरा अच्छे ढंग से रगड़ते हैं, तो दौड़ाते हैं। अब जो 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 नीड जो है, जो डेली वाली जो है, एक तो स्टैमरिंग पर से जो डेली वाली जो वो है नीड, उसको अब ले करके स्विच करना, और ये जो 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 लाइफ जो लाइफ स्टाइल जो मेंटेन कर रहे हैं सर, इसको ले करके स्विच करना, वो मैं वहां पर आ करके रुक गया मैं, कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसके बारे में आपको, जैसा भी आपको समझ में आए सर। ये बात में भी बात कर सकते हैं, ये थोड़ा पर्सनल है, मुझे थोड़ा जानना पड़ेगा कि ये आप फाइनेंस छोड़ के लॉ में क्यों जाना चाहते हैं, क्या इंटरेस्ट है आपको लॉ में। और ये भी जानना पड़ेगा आपको कि सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, लॉ में कौन सा जॉब, कौन सा रोल आप करना चाहते हैं। क्योंकि अगर और ये भी सही है कि लॉ में उतना हर, आई मीन, वो जो मेरा, जहां तक मुझे मालूम है, लॉ में रूट थोड़ा उतना आसान नहीं है, अनलेस यू ऑलरेडी नो कैसा जाना है, कैसा आगे जाना है, वो रूट थोड़ा बहुत मालूम हो जाना चाहिए आपको। अगर सही, ये सब चीजों के बारे में जानते हुए अगर आप लॉ करने का कोशिश कर रहे हैं, तो ऑलरेडी यू आर इन ए गुड स्टेट। अगर ये सब के बारे में पूरा जानकारी नहीं है, तो पहले वो जान लेना चाहिए, फिर हम लोग ये सोचेंगे कि वो जाने में फायदा है या नहीं है। पहले क्यों जाना चाहते हैं, वहां का सिचुएशन कैसा होगा, कौन सा रोल मिलेगा, कैसे मैं करियर प्रोग्रेशन कर पाऊंगा, ये सब के बारे में थोड़ा आइडिया लगा लेना चाहिए। फिर ही हमको सोचना चाहिए स्विच के बारे में। स्विच करने से पहले कोई भी चीज छोड़ना आसान होता है, पकड़ के आगे चलना उतना आसान नहीं होता है। थोड़ा जो हमारे हाथ में है वो छोड़ने से पहले ये थोड़ा क्रिटिकली व्यू करना चाहिए, या जैसा बोलते हैं कभी कि डेविल्स एडवोकेट, थोड़े बहुत लोगों को ऐसा रोल भी प्ले करना चाहिए, वो आपसे बार बार क्वेश्चन करें क्यों जाना चाहते हैं आप, जो चीज आप करना चाहते हैं वो आप अपने फील्ड में क्यों नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाएंगे, वैसा अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है। क्योंकि काफी बार वो दूर के चीज अच्छी लगती है, वहां जाने के बाद पता चलता है कि बॉस वो नहीं था, मुझे करना कुछ और करना था। तो हम लोग एनफ प्रिपरेशन करें, एनफ रिसर्च करें, ताकि वो सिचुएशन में हम ना हो। अगर आपका अपना स्पेसिफिक केस मुझे बाद में भी रीच कर सकते हैं, हम लोग उसके बारे में बात भी कर सकते हैं। जिस हद तक मुझे मालूम है या मेरे दोस्त को अगर किसी को मालूम है, तो मैं कनेक्ट भी करूंगा आपको। ठीक है, तो सर आप तो आप ऑनलाइन कन्फेस कर रहे हैं, क्या हम आपको जो है बाद में भी परेशान कर सकते हैं सर? ये थैंक यू। ये तीसा के लिए मेरा हमेशा ऑफर रही है, हमेशा ऑफर रही है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। दिपेश राणे जी, और लास्ट क्वेश्चन रखेंगे समीर कुमार
झा जी का जी। देवराज जी प्लीज। आप म्यूट में हैं। वो एक्चुअली में जो है सर वो अ, आगे। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि जब हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है और मीन्स किस कारण से जॉब लगने को टाइम लगता है, जैसे ग्रेजुएशन और जॉब इंटरव्यू देने के बीच का समय ज़्यादा हो, जैसे 3 महीना, और मीन्स कुछ टाइम हो, वो इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस में उसका कुछ इम्पेक्ट पड़ता है। यह मेरा क्वेश्चन है सर। आप कौन से फील्ड में हो? टेक्निकल फील्ड में हो, कुछ और फील्ड में टेक्निकल हो? टेक्निकल जनरली काफी हद तक वो ग्रेजुएशन होने के बाद 1 साल तक काफी ओपनिंग जनरली लोग ओपन रहते हैं 1 साल तक लेने के लिए। 1 साल के बाद अगर आप इंटरव्यू करना चाहते हैं तो थोड़ा सोचते हैं कि क्योंकि नए बैच आ जाएंगे ना, तब लोगों का कंसंट्रेशन उस चीज के ऊपर होगा। अगर 1 साल से ज्यादा है तब आपको सोचना पड़ेगा कि आप ऐसा क्या करेंगे, या फिनिशिंग स्कूल में, या कुछ सर्टिफिकेशन लेके, या कुछ और कोर्स करके, ऐसा क्या करके आप उनका दिल जीत पाएंगे, ये चीज सोचना पड़ेगा। ये तो एक चीज है। बाकी जो है आजकल पहले जैसा जमाना थोड़ा चेंज हो रहा है, काफी सारे प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, जैसा हैकर रैंक वगैरह, या ये क्या अनस्टॉप के बारे में सुना हूं मैं। काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें चैलेंज लगाए जाते हैं, और अब जो भी हो वो चैलेंज में पार्टिसिपेट करके अगर आपका स्कोर अच्छा है तो जो जॉब रिक्रूटमेंट करने वाले हैं उनके क्राइटेरिया में आप आ जाएंगे। तो वो लेने से आपको, अगर जॉब नहीं भी हो, अगर ये सब ले रहे हैं आप, अगर और उनका चैलेंज में आप भाग ले रहे हैं, अगर अच्छा स्कोर करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली उनके नजर में आ जाएंगे। अगर अच्छा स्कोर ना भी करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आप जान लेंगे, आपको कि आप जान लेंगे कि आपको क्या चीज मालूम नहीं है, ताकि आप अच्छा प्रिपेयर हो जाए। तो जो भी टाइम है ना, जितना भी टाइम है, पूरी तरह से प्रिपेयर भी कर लेना और ये सब चैलेंजेस में भाग भी लेना। 1 साल तक आपको विंडो अच्छा होगा, उसके बाद भी होगा लेकिन अपॉर्चुनिटीज थोड़े कम होंगे। ओके ओके सर, थैंक यू। और ये चैलेंजेस के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। मुझे उतना मालूम नहीं है ये चैलेंजेस के बारे में, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि आजकल का जो रिक्रूटमेंट है वो थोड़ा पहले वाले से थोड़ा अलग है। मैं अपडेटेड, एकदम से अपडेटेड नहीं हूँ, लेकिन मैं जब रिक्रूट करने का कोशिश कर रहा हूँ ना, तो थोड़े बहुत प्लेटफॉर्म मुझे भेज रहे हैं कि बॉस ये ले लीजिए, आपको चैलेंजेस है, अगर लोग ले लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे जो सक्सेसफुल लोग हैं वगैरह, जो हाई परफॉर्मर्स है। तो ये सब के बारे में, ये सारे प्लेटफॉर्म को एक बार आप जांच लीजिए, थोड़ा बहुत मालूम कीजिए ये सिस्टम कैसा चलता है। दोस्तों को भी शायद मालूम होगा, ये सब के ऊपर आप ध्यान दीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू दीपराज जी। लास्ट क्वेश्चन है सर समीर कुमार झा जी का प्लीज। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। मेरा नाम समीर कुमार झा है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रहा हूँ। तो मैं साथ साथ में गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरा टारगेट है बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना। तो मेरा क्वेश्चन है कि बैंकिंग सेक्टर में कितना क्वेश्चंस सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जाते हैं, और कितना
रियल लाइफ एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन में तो हम थोड़ा बहुत पहले से प्रिपेयर करके जा सकते हैं, मगर जो एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन पूछेंगे उसमें तो हमें वहीं पे स्पॉन्टेनियस सोच के आंसर देना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्वेश्चन और दूसरा क्या बोले, मैं भूल गया, और एक बार बोलिए। और दूसरा होता है जो रियल लाइफ के थ्रू आपसे कोई एग्जाम्पल पूछते हैं और उसमें हमें बताना है कि तब जैसे रीजनिंग नहीं होता है वैसे ही, जैसे कि उन्होंने एक कंसेप्ट पूछ लिया है और कोई पीछे एकदम पास्ट केस से मिलता जुलता कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो कैसे आंसर देंगे। सो ये बैंकिंग इंटरव्यू में एग्जैक्टली किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो मैं नहीं बता सकता, मुझे उसके बारे में उतना आइडिया नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन, रियल लाइफ के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तब उनको हैंडल कैसे किए जाएं उसके बारे में थोड़ा आइडिया शेयर कर सकता हूँ। एक होती है, काफी सारे क्वेश्चन जो है, काफी सारे जनरल क्वेश्चन जो होते हैं उनमें थोड़ा सिमिलैरिटी होती है। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म में पूछेंगे कि कैसे किस किस तरह के जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप आराम से मालूम कर सकते हैं कि 10-20 क्वेश्चन ऐसा आराम से आप निकाल सकते हैं। थोड़े बहुत तो हर कोई पूछता है, आपका बैकग्राउंड जो भी है और उसके बाद आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, 5 साल के बाद आप क्या करना चाहते हो, आगे जाके क्या करना चाहते हो, अगर नहीं मिला तो क्या करना चाहिए, वो थोड़े बहुत 10-20 क्वेश्चन ऐसा होते हैं को काफी स्टैंडर्ड होते हैं। तो आपको वो सब 20 क्वेश्चन लेके एक पेपर में रख के आप उनका आंसर निकालना है और अपने दोस्तों से या किसी और से उनको पूछवाना है। वो लोग पूछेंगे और आप उनको आंसर करने का कोशिश करेंगे और उनसे फीडबैक लेंगे। आप आपने कैसा बोला, कंटेंट अच्छा था, डिलीवरी अच्छा था, क्या चीज कर सकते हैं आप। ये रियल लाइफ क्वेश्चन जो है वो ऐसा चांस है कि आपको अच्छा प्रिपेयर अगर आप करेंगे तो 50-60% क्वेश्चन जो है ना आपको प्रिपरेशन से ही आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 30-40% आपके प्रिपरेशन के बाहर आ जाएं, लेकिन वो 50-60% क्वेश्चन जो है वो पहले आएंगे। ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा उसको अच्छा आंसर देने में। और ये जो प्रिपेयर करते हैं ना आप, 10-20 क्वेश्चन जो भी है रियल लाइफ क्वेश्चंस का आंसर कैसे दें, अगर आप सही तरह से प्रिपेयर करेंगे, सही तरह से रियार्स करेंगे तो आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा कि ऐसा क्वेश्चन का आंसर अगर आप प्रिपेयर ना भी किए हों तो उनका आंसर कैसा दिया जाता है, आपको अच्छा आइडिया मिलेगा। वो दोनों चीजों में आप अच्छा कर पाएंगे। अगर ये करंट अफेयर्स की चीज है, अगर अगर रियल लाइफ क्वेश्चन माने अगर आपके पर्सनालिटी जनरल क्वेश्चन है तो वैसा है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में आते हैं तो उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर ना भी आते हैं तो हर रोज अखबार पढ़ना, मालूम करना कि क्या होता है, वो तो समझना है कि कोई भी इंटरव्यू में वो क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि लोग लोग ये भी देखेंगे कि आपका जनरल नॉलेज जो है, जो बात करने का जो एबिलिटी है वो ठीक है कि नहीं है। वो उसके ऊपर तो इंटरव्यू हो या ना हो वो आपको जानना पड़ेगा। अगर इंटरव्यू है, अगर आप जानते हैं तो थोड़ा ज्यादा ध्यान उसके ऊपर देना पड़ेगा। Okay, sir. Thank you for your valuable response. Thank you. सर थैंक यू फॉर सचिन सर कि उन्होंने आपका नाम बोला कि वरना इतना जो है इतना फ्रूटफुल जो है उसका इंटरव्यू। और थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि आप आपसे जो है बात करने का, सीखने का और हम लोगों को सीखने का इतना जो है सर आप मतलब ये वंडरफुल जो है सर रहा सर। तो सर हम इसको थैंक यू के साथ जो है हम लोग सर इसको यहीं पर एंड कर रहे हैं।
हाँ, आपको अगर सर कुछ शेयर करना हो तो प्लीज शेयर कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सर एंड करेंगे प्लीज। थैंक यू फॉर होस्टिंग में। गुड, अच्छा लगा मुझे आपका आंसर करके। एक चीज समझ लीजिए कि हर एडवाइस हर किसी के लिए नहीं होता है, तो आपको चुनना है कि कौन सा एडवाइस आपको सही लगे, सिर्फ वही लेना है, जिस हद तक लगे उस हद तक ही लेना है आपको। और दूसरा चीज, अगर कभी कुछ मॉक इंटरव्यू, मैंने किसी और से भी बोला था, अगर मॉक इंटरव्यू स्पेशली टेक्निकल या जनरल सीनियर लेवल पे इंटरव्यू अगर लेना है, तो मैं मॉक इंटरव्यू में शामिल भी हो सकता हूँ। अगर वो आप करना चाहते हैं तो वो एक ऑफर है मेरा, कभी भी कर सकता हूँ। और किसी को अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है, जैसा आपने पूछा, संतोष जी ने पूछा, तो अलग से आप रीच भी कर सकते हैं। जिस हद तक मुझे मालूम है उस हद तक मैं बोलूंगा आपको। वंडरफुल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, माय प्लेजर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर joining. Bye bye. Thank Good you. night. Thank you, sir. थैंक यू। Thank you.